Hello friends, welcome to ProTalent, and this is one of the very interesting session which I'm bringing to you, that is called reading comprehension. This is a part of score booster module by ProTalent, and I'm sure you will enjoy wonderful module with us for reading comprehension. आज के इस मॉड्यूल के अंदर I'm going to discuss about some very critical aspect related to reading comprehension. ये शुरुआत के सेशन है जहां पे I will be giving you basic tips developing a sort of mindset towards going for your you can say reading comprehension. ये वीडियोस के अंदर आपको शुरुआत में सिर्फ सुनना है, समझना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. आप एक बार ऐसे विचारों से जब एक्सपोज होंगे तो आप जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे होंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चीजों को, इंफॉर्मेशन को सही तरीके से एसेस कर पाएगा. याद रहे, I discussed in my first score booster module when I was introducing score booster, I discussed that reading comprehension is more of information assessment front, and therefore in this particular module I'll be discussing about those information assessment front. ये इंफॉर्मेशन असेसमेंट फ्रंट किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको शुरुआत के 3 वीडियोस में एक बेसिक ओरिएंटेशन दूंगा, और उसके बाद slowly and slowly I will be moving towards solving questions with you. Okay, so ये छोटा सा मॉड्यूल बहुत फायदेकारक रहेगा आपके लिए. चलिए फटाफट देखते हैं किस तरीके से ये काम होने वाला है. So सबसे पहला मॉड्यूल है चैलेंज. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का चैलेंज एग्जैक्टली क्या है? The challenge is this. Okay, number 1 is you don't know what the title is in the reading comprehension, और इसकी वजह से सबसे बड़ी परेशानी होती है कि एग्जैक्टली अंदर लिखा क्या होगा. That is a big challenge you have. Another thing, you don't know who is the author, and therefore you cannot connect a lot of things with this reading comprehension. Another challenge you face is you don't know where and when this article was published. So that means आपको उसके पीछे का context नहीं पता है. Okay, so what is the meaning of all this? It says you don't know the context. So when you don't know context, there is definitely a problem in terms of understanding it. Okay, another part, you can't see the paragraphs before or after that particular essay. उसके पहले क्या था, उसके बाद क्या था, आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. You don't have enough time to read as well, and the content is very dense, boring, smeared with a lot of jargons. That means it is full of jargon, and it covers the topic where you are not very familiar about. And important part is, if you master those 400 words, your dream law school is in your hand. Remember, that is where the game lies actually. So here I will help you out to, you can say, decipher and master at those 400 words in your exam. Okay, so ये चैलेंज है. इन चैलेंज से जूझना कैसे है? So भैया ये चैलेंज के लिए सबसे पहला मुद्दा कि आपके पास कौन से टास्क है, करना क्या है आपको. ठीक है, तो भैया सबसे पहली चीज आपको करना क्या है? ये 4 चीज है. क्या करना है? सबसे पहला, आइडेंटिफाई द मेन आइडियाज. कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा. आज मैं आपके सामने सिर्फ एक बात प्रेजेंट कर रहा हूं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और करना क्या है. ओके, तो जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जनरल रीडिंग कैसा हो जाता है? पैसिव. ओके, हम पढ़ते तो रहते हैं, ठीक है, हम सिर्फ वो वर्ड्स पढ़ते रहते हैं, हम ढूंढते क्या है, क्या दिया है, ठीक है, हम इधर ध्यान देते हैं. बट मेरा मानना है कि दिस इज अ बैड आइडिया. रादर यू शुड थिंक अबाउट व्हाई इट इज प्रेजेंटेड. ओके, व्हाई इट इज प्रेजेंटेड एंड व्हाई विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया. सो जब आपको कोई मेन आइडिया ढूंढना है तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि ऑथर ने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में क्यों ये सब चीजें लिखी है. whether author is simply describing something or author is giving his opinion. Okay, this is where the game lies. So when you think about why and you start going with an active reading, ठीक है, तो आपको ये चारों 4 चीजें आप करने के काबिल बनेंगे.
सबसे पहला काम आपका होगा आइडेंटिफाइंग मेन आइडिया, ये ऑथर ने जो भी लिखा है उसका मेन पर्पस क्या है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स दे डू नॉट अप्लाई दिस माइंडसेट एंड दे सिंपली रीड द पैराग्राफ, सिर्फ पैराग्राफ पढ़ते जाते एंड देन दे गेट यू कैन से सम हिंट्स फ्रॉम द क्वेश्चन एंड दे ट्राई टू सी द आंसर। ठीक है, बिल्कुल उस तरीके के अप्रोच में 10 क्वेश्चन में से 5 या 6 क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, और जब आपको एनएलयू में जाना है मेरा मानना है 8 से 9 क्वेश्चंस आपके परफेक्टली राइट होने चाहिए। आरसी में कुछ बच्चों के 10 में से 10 राइट होते हैं, है ना। सो बेसिकली वो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये जो थोड़ा सा एफर्ट डालने की बात है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, वो उन्होंने डाला है। क्या एफर्ट है? एक्टिव रीडिंग के साथ ये आइडेंटिफाई करना दैट व्हाट इज द मेन आइडिया। ओके, another important point, they are good at finding out or locating specific detail। मेरा मानना है कि इस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादातर बच्चे कंफर्टेबल होते हैं। सब लोग, आप जितने भी लोग ये बात सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि आप सब लोग इसमें बहुत कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, एंड देन कम्स नंबर 3, कंसिडर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैराग्राफ। ये चीज हम नहीं करते। हम पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद 2 मिनट या 1 मिनट रुककर ये नहीं सोचते हैं कि ये पैराग्राफ किस ऑर्गेनाइजेशन, किस स्ट्रक्चर में दिया। हम पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैराग्राफ्स जो दिया है कि एक एक पैराग्राफ एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन डेवलप करता है, उसके ऊपर 30, 40, 50 सेकेंड सोचना चाहिए बिफोर यू जंप टू दी क्वेश्चंस। ओके, सो ये बिल्कुल जरूरी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, the expectation of the examiner is you should be in a position to make some inference out of it, at least one inference। ठीक है, ये उनका एक्सपेक्टेशन है। अब इन्फरेंस का मतलब होता है कंक्लूजन। ओके, इन्फरेंस का मतलब होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसे डेवलप होता है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कंक्लूजन की डेफिनेशन क्या है? कंक्लूजन की डेफिनेशन है फ्रॉम अ नोन इंफॉर्मेशन यू टॉक अबाउट समथिंग अननोन, दैट इज द मीनिंग ऑफ inference, and therefore it is a difficult task for large number of people to connect many things from known and reaching to the unknown, and here this 4 basic tasks have to be developed। okay, इसके ऊपर आपकी मास्टरी होनी चाहिए। ठीक है, और यही 4 चीजों के बारे में मैं आपको ट्रेन करूंगा इस स्कोर बूस्टर मॉड्यूल के अंदर। बट उसके साथ साथ मैं एक और चीज बताना चाहूंगा that students like you who are the test takers, what problems do you face? The problem you face is your concentration is very poor, है ना। concentration का क्या प्रॉब्लम है? concentration का प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल सा है that when you read a paragraph, ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ में जाते हैं, आगे वाला पैराग्राफ आप भूल जाते हैं। ठीक है, क्यों आपका पुअर रीडिंग है? पुअर रीडिंग इसलिए है बिकॉज यू आर नॉट एक्टिवली एंगेज विथ अ कंसेप्ट ऑफ व्हाई, कि आपको क्यों ये पढ़ना है ना। आपका फोकस व्हाट पे है। ठीक है, मैंने आगे बताया कि भैया व्हाई पे फोकस करिए, इस ऑथर ने क्यों ये लिखा है, उसका मेन आइडिया क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन बाकी 4 इंफॉर्मेशन के साथ कैसे मिक्स होती है, और वो मिक्स होने के बाद उसका फायदा क्या होता है, ये आपको निकालना बहुत जरूरी है। सो दिस इज बेसिकली योर कंसंट्रेशन इज डेफिनेटली वेरी पुअर, और उस पुअर कंसंट्रेशन को अगर निकालना है सो यू हैव टू गेट इनटू एक्टिव रीडिंग कैपेबिलिटी। ओके, सो दिस इज वेयर यू नीड टू डेवलप, और ये डेवलप होने में समय लगेगा, ये कोई फटाफट होने वाला नहीं है। ओके, सो दिस इज योर कंसंट्रेशन इज वेरी पुअर एंड देयरफॉर यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस एक्टिव रीडिंग कैपेबिलिटी। जब आप कॉन्शियसली कुछ भी पढ़ते पढ़ते उसके साथ कनेक्ट करोगे, आप सवाल ये पूछोगे कि ऑथर ने ये आर्ग्यूमेंट क्यों दिया है, ठीक है, ये एग्जांपल क्यों आया है, ये एग्जांपल आगे वाले एग्जांपल के साथ या आगे वाले आर्ग्यूमेंट के साथ कैसे कनेक्ट करता है, then possibly you will be in a position to go for this active reading and your concentration will automatically improve. Okay, your reading pace is slow. Okay, remember every one of us has some reading space. Okay, हमारी एक पेस है, हम एक स्पीड में पढ़ते हैं और उसमें हमें जल्दबाजी करनी चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं। आप पढ़ते पढ़ते आप नॉर्मल पेस पे आगे बढ़े, पर यह चीज ध्यान रहे कि आपको कुछ जगहों पे रीडिंग स्पीड तेज होनी चाहिए और कुछ जगह पे आपको रुकना है। कहां रुकना है? wherever there are contrast words being provided where the ideas are changing, okay, change of ideas are taking place,
then you'll have to slow down your pace and read it, you can say, thoroughly. ध्यान से पढ़ना है. अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, आप तेजी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू, यू कैन से, कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स, ध्यान रहे, वहीं पे गेम चेंज होगा. ओके, another point, another problem you are facing is to answer each question you find yourself searching for the passage again and again. That means your memory power, आपका रिटेंशन पावर इज वीक. ओके, क्यों वीक है? क्योंकि आपने उसको एक्टिव एंगेजमेंट के साथ नहीं पढ़ा है. ठीक है, ध्यान रखना, दिस सॉल्यूशन इज सिंपल. एक्टिव रीडिंग, आस्किंग व्हाई, एंड व्हेन यू आस्क व्हाई, आप पढ़ते पढ़ते ही बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल लेंगे. बहुत बार लोग फटाफट पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, वापस पैराग्राफ पे आते हैं और पैराग्राफ में से ढूंढने की कोशिश करते हैं, और कभी कभार नहीं भी मिलता है, नहीं भी मिलता है. ओके, एंड देन नंबर 4, यू हैव ट्रबल नैरोइंग डाउन द आंसर चॉइसेस. ठीक है, कहां पे प्रॉब्लम है? जब आपने 2 ऑप्शन तो निकाल दिया, अब आपके पास बाकी 2 ऑप्शन बचे हैं. उन 2 ऑप्शन में से कौन सा आंसर लेना है, एंड देयर यू गेट इनटू ट्रबल, क्योंकि आपको लगता है दोनों रफली सेम है. ओके, सो ये है आपके 4 बड़े परेशानी, 4 बड़े प्रॉब्लम्स. अब इन प्रॉब्लम का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? 2 कारण है. सबसे पहला कारण है, एक है एक्टिव रीडिंग. दैट मीन्स कि आप जब पैराग्राफ पढ़ते हैं, जब आप पैसेज पढ़ते हैं, तब आप पैसेज को बहुत एक्टिवली नहीं पढ़ते हैं. और दूसरा सबसे बड़ा कारण, ठीक है, जो आप कहीं फंसते हैं, दैट when you read your options, you are not very much engaged and you are not reading it critically. आप बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं और आप जल्दबाजी में रहते हैं, और उसकी वजह से आप उसका आंसर गलत कर पाते हैं, या कभी 2 ऑप्शन के बीच में से सही आंसर निकाल नहीं पाते हैं. And therefore it is very important for all of you to be very clear about good reading capability. एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना जरूरी है. This is a critical reading capability you'll have to develop. Okay, so ये है मेरी तरफ से पहला मॉड्यूल, जहां पे मैं आपको ये बताना चाहता था कि आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की चैलेंज क्या है. Okay, in the next module I will actually help you out with respect to the test maker. जो मैं अगर टेस्ट बनाता हूं तो मैं किस तरीके के गलत आंसर्स आपके सामने रखूंगा, जिसकी वजह से मैं आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करूंगा, और उस ट्रैप से बचे कैसे, उसके बारे में मैं बात करूंगा आपके साथ अगले मॉड्यूल के अंदर. दैट विल कम द वेरी नेक्स्ट डे. ओके, चलिए, ग्रेट. सो आई होप this reading comprehension basic understanding about the challenge and the kind of problems you are facing, you are aware about it. Remember, sometimes knowing about what problem are you facing is more than sufficient for you to arrive at some kind of solution. आज मैंने वही आपके सामने रखा है और मैंने solution भी दिया है, that you have to go for active reading. Okay, चलिए, great. Let's go to the next module and we will really enjoy about learning about reading comprehension. Okay, thank you very much to be part of this core booster, and I'm sure you will definitely enjoy our entire module. Okay, thank you very much. All the best.